हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। ये वही इलेक्टोरल बॉन्ड्स है जो कि काफी कंट्रोवर्सी में आ गया था। अगर आप सबको याद है, लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में जो हुआ था। और इस पूरे स्कैम को, अगर मैं स्कैम कह सकती हूँ, तो स्कैम को एक्सपोज करने में काफी सारे लोगों का हाथ था, लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जिनका कंट्रीब्यूशन रहा वो है ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट कोमोडोर लोकेश बत्रा, जो कि रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं। इन्होंने काफी सारे आरटीआई बॉन्ड से रिलेटेड लगाए थे। थैंक यू सो मच मिस्टर बत्रा फॉर ज्वाइनिंग मी। और सर, आज हम बात कुछ बॉन्ड से रिलेटेड ही करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूं कि कोमोडोर बत्रा का जो डेडिकेशन रहा है आरटीआई को लेकर, आरटीआई के थ्रू सूचना लेने को, वो कमेंडेबल है। इनके जैसे लोग एक्टिविज्म में कह लीजिए या ट्रांसपेरेंसी में कह लीजिए बहुत कम मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और ये आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसके कारण ही कई सारी चीजें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में हमें पता चली और आरटीआई के थ्रू पता चला, और जिसके बेसिस पे कोर्ट का जजमेंट रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया। तो आज हम आरटीआई से रिलेटेड ही एक और मैटर पे बात करेंगे, और वो ये दिखाता है कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो जजमेंट आया था आपका फरवरी 2024 में, उसके पहले ही हजारों इलेक्टोरल बॉन्ड्स की प्रिंटिंग का ऑर्डर सरकार ने दिया था। तो उस बारे में हम बात करेंगे मिस्टर बत्रा से। सर, ओवर टू यू। Thank you, Poonam, first of all, for inviting me and for your all the good words. I salute you. And this is about, you already introduced me. The question is that it took so long. The hearing started in 2023, only toward the end of the October, 31st October or something. After 3 days hearing, arguments by all parties, on 2nd of, this is important date, on 2nd of November, Supreme Court reserved judgment, but did not stay the electoral scheme at that time. Now let's talk of from the date of 2nd November will be very important. This what are we going to do? जो भी चर्चा करेंगे उसके बारे में. Now, since it was not a stay, there was a sale immediately after that month. 6 weeks stay because some elections were coming, and that provision is there in the notification. Then the last sale was in January for 10 days, for January to 10th January also. सर, 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2025 को लास्ट सेल हुई थी। That was the last sale after the judgment was reserved. It was first or to 11th or first to 10th or second to 11th, just roughly I'm saying. But first 10 days are normally given if it is not Saturday. Now, what shocked me through my RTI is on 8th of January, a letter is pushed by the State Bank of India to the Government of India stating by providing the complete inventory also in a proper table inventory, how many are palaces, where are they lying, they mention they are lying in branches and how many are lying in that's called reserve stationary depot of the where they lying. They wanted to print another 10,000 bonds, and mind it, so bonds of 1 crore each, not any other. That means they all look for 1 crore because they were sold 95% roughly was sold 1 crore so far in 30 phases. The last it started in the March first phase, which was itself is, I would say, was illegal because notification came on 2nd January 2018. And that means they had to do it in January, but they were not ready. If you were not ready, the next sale would have been in April. But they went ahead having a sale from 1st March to 10 days, which was, I always call it illegal because it was not part of the notification. The interesting part was they were not ready even with the bonds. So I'll come back to that later on.
So back to January 24, on 8th January, a letter was written, proposal was sent by the State Bank of India to the Government of India, that is Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, saying that elections will be coming and we have, this is the stock left. At that time, there were more than 6,000, nearly 6,000 bonds of 1 crore each were available even then. Government did the typical of A to B, the proposal, Joint Secretary, FM, and the approval came on 12th of January. By that time, the last phase, 30th phase sale was also over. Government agreed, surprisingly. These are the things which is not only, I won't say shocking or surprising, amazingly, this was not understood. When judgment is reserved, did the government feel so overconfident that judgment will come in their favor? So It appears. मैं बस एक टाइमलाइन फिर से बता दे रही हूँ कि ऑडियंस को कि 2 नवंबर 2023 को जजमेंट रिजर्व हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सुप्रीम कोर्ट में। फिर 12 जनवरी 2024 को वो ऑर्डर देते हैं प्रिंटिंग के लिए इंडियन सिक्योरिटी प्रेस को कि आप 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स छापे और डिनोमिनेशन 1 करोड़, यानी कि पर बॉन्ड 1 करोड़ के वैल्यू का होगा। ये ऑर्डर उन्होंने जनवरी 2024 में दिया। तो दिस शोज कि भाई काफी कॉन्फिडेंस में सरकार थी कि जजमेंट में उनके खिलाफ या स्कीम के खिलाफ कुछ नहीं आएगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या सर? मैं ये कह रहा हूँ कि प्रपोजल जो भेजी गई थी अप्रूवल के लिए 8 जनवरी को भेजी गई थी, जबकि 30th tranche of the sale was still going on, 2 days were pending. And the approval, government approved it on 12th, same day order was placed as you mentioned. तो सर ये जो 12 जनवरी को जो ऑर्डर गया उस समय, जब मैं ये समझना चाह रही हूँ कि 10,000 का उन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है, उस समय इन्वेंट्री में कितना बॉन्ड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था 1 करोड़ का? If you look at the inventory that is mentioned in this thing, if I remember correctly, it's about 5,000 plus. Yes, I've seen the document, उसमें 5,000 plus already exist कर रहे थे electoral bonds. Yes, you're right. I've seen that inventory. So full inventory was there. एक 1,000 से लेके 1 करोड़ तक कितने पेंडिंग उनके पास है। मेरा ये कहना था कि आपने कोई इलेक्शन भी नहीं आ रही थी, बिकॉज एज पर नोटिफिकेशन नेक्स्ट सेल वाज ड्यू ओनली इन अप्रैल, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर और वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो वर्डिक्ट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता था। तो जल्दी क्या थी इसमें, ये जल्दी क्या थी, वेट नहीं कर सकते थे, बिकॉज 3 महीने तो वैसे ही निकल गए थे, नवंबर, दिसंबर, वर्चुअली जनवरी, जब से ऑर्डर रिजर्व था कभी भी आ सकता था। अब ये हुआ कि 15 फरवरी, दैट इज 15 Feb 2024, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट केम और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारा जो स्कीम है 2018 इलेक्ट्रो बॉन्ड स्कीम, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दैट वाज ऑफ 15th Feb 2024. Now, next thing was that orders were already placed for 10,000 printing के, and this मुझे explain करना, this printing is done in the Indian Security Press, Nasik, where आपकी currency and other important documents are printed. तो क्या हुआ कि judgment आ गई, but it took some time for reaction from the government as well as State Bank of India. So State Bank ने गवर्नमेंट को बताया कि 23 फरवरी को उनके पास पूरे बॉक्सेस आ गए हैं कंटेनिंग 8,350 बॉन्ड्स के, आई मीन बॉन्ड्स पेपर्स ना। गवर्नमेंट ने उनको बताया भाई उसको पहले बंद करो, उसको मोर प्रिंटिंग ना हो जो बैलेंस है 1,000। सो बाय टाइम ऑर्डर वेंट इनटू, उसको ऑर्डर दिया गया प्रिंटिंग प्रेस को, तो काफी लेट, उसमें भी काफी लेट, पर उसको इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि इसमें स्टे, इसको मैं क्या यूज करता हूँ, उन्होंने उनको बताया कि स्टे करिए, अभी और प्रिंटिंग नहीं करनी, हम बताएंगे आपको। तो ये हुआ था कि 8,350 थे ना, इनकी वैल्यू जो थी नियरली 4 लाख थी। सबसे बड़ा हमें ये नहीं पता, जो भाई 1 साल से ऊपर हो गया जजमेंट आए,
क्या जो बचे हुए थे बैलेंस थे इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो क्या डिस्ट्रॉय हो गए या अभी सेफ है? क्या हुआ उसका क्या किया तो इन्होंने, उसको कहाँ तो पड़े? बेच तो सकते ही नहीं, क्योंकि ये तो स्कीम ही स्क्रैप हो चुका नहीं है। नहीं नहीं, अगर आपको याद होगा एक स्टेटमेंट आई थी गवर्नमेंट की तरफ से, आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर ने, विल ब्रिंग दिस स्कीम अगेन विद अ डिफरेंट वे, इफ यू रिमेम्बर दैट। यस, आई डू रिमेम्बर। एनीवे, मेरा मेरा काम ये था कि पता करें वो कहाँ रखी है, बचे हुए हैं, डिस्ट्रक्शन हुआ है, क्या हुआ। तो पर उन्होंने जो इन्वेंट्री चिट्ठी के अंदर लिखी हुई थी स्टेट बैंक की जो दी थी, उसमें दिया हुआ था कहाँ थे, जैसे ब्रांचेस एंड RSD, दैट इज रीजनल स्टेशनरी डिपार्टमेंट, ओके। इतने वहां पड़े। बट अब 1 साल हो गया था उस बात को, जनवरी के बाद, अब बल्कि 1.5 साल हो गया था। तो ये बड़ा जरूरी हो गया कि पता किया जाए वो कहाँ है, कितनी है। तो मैंने फिर 2 RTI स्टेट बैंक में, पहले तो उनसे पूछा आपके बीच में और जो कम्युनिकेशन हुआ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में और प्रिंटिंग प्रेस के साथ, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। दूसरी वाली RTI जो उन्होंने किया था कि इस जिसमें ये इन्वेंट्री दी हुई थी, एक में था कि 31 दिसंबर की इन्वेंट्री थी और जब प्रपोजल डाली थी तब भी थी, तो उसके हिसाब से बहुत थी। तो मैंने उनसे यही पूछा कि मुझे आप बताइए कि आज की डेट में इन्वेंट्री का मुझे एक पूरा वो टेबल दीजिए जैसे आपने अपने प्रपोजल लेटर में दी, और इन सब केसेस में RTI के साथ मैं उनके लेटर जो है वो भी लगा देता हूँ, ताकि ईज फॉर द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए आसानी हो जाती है रेफरेंस। और मैंने डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर का दिया। पर सरप्राइजिंग एक चीज और हुई कि उन लेटर के नीचे एक लाइन में लिखा हुआ था, व्हेन द प्रपोजल वेंट, कि इसकी जो कॉस्ट है ना, वो प्रिंटिंग प्रेस बेयर करेगी एज हिदरटू, जैसे पहले होता था। बट एक्चुअली इट इज सरप्राइजिंग कि सबको पता था कि वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया था, और वो फाइलों में भी था कि जब शुरू शुरू में 2 चीजें होती थी, एक कमीशन, भाई बैंक में, अब पुरानी बातों में नहीं ज्यादा जाऊंगा, कि बैंक ने ये कहा था कि भाई जो आपका कमीशन, विल डू इट बिकॉज दैट विल सेव अस, और गवर्नमेंट से डोंट वरी वील बियर। तो कमीशन और प्रिंटिंग चार्जेस जो है गवर्नमेंट देती है थ्रू द डिपार्टमेंट। सो उसके लिए मैं हैरान हूँ कि स्टेट बैंक ने ये लिखा, वो भी इतने सालों के बाद, जब स्टार्ट मार्च 2018 में हुई, और ये 2024 में उस पत्र में नीचे लिख रहे हैं। आप देखें मेरे उस पत्र जो मैंने RTI किया है, मैंने हाईलाइट किया। तो मैंने उनको अपने ही RTI में, नॉर्मली आई हेल्प आउट द पब्लिक अथॉरिटी व्हेन आई डू फाइल, सो आई सेड यू हैव रिटन दिस एंड दिस इज ये आपने लिखा, और ये लेटर जो है ये डिपार्टमेंट इकोनॉमिक, और उसमें हेड भी है, किस हेड से पैसा दिया जाता है। अब तक सारा पैसा जो है वहां सब पे है। मैटर तो ये है कि तो चाहे ये वो आईएसपी दे, चाहे गवर्नमेंट दे, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री दे, पैसे तो टैक्स पेयर का ही है, जिसके ऊपर भी हम बार बार बिल्कुल, चर्चा कर चुके हैं कि भाई टैक्स नहीं पेयर नहीं, का बट पैसा ये, है इसमें। पर हैरानी होती है ना, स्टेट बैंक जब इतने सालों के प्रैक्टिस के बाद सब पता होता था, हम लोग जब वो पैसे का पता करते थे, 11 करोड़ हो गया टैक्स पेयर्स का पैसा, 12, तो ये छपती थी, स्टोरियां छपती थी, उसमें हम कहते थे बिलियनर्स बाय इट and don't pay commission, and parties take it tax free, that donation, and it's एग्जैक्टली only exactly. taxpayers who pay it, that kind of thing we were saying. So it is surprised to hear from letter of State Bank of India, and I'm sure they were not at their own saying, they were asked to do it. I सर, am very sure about that. और ये जो 8,350 जो बॉन्ड्स छपे हैं जो कि यूजलेस हो गए, और उसके ऊपर एसबीआई बाद में 28 फरवरी को बोल रहा है कि रोको रोको प्रिंटिंग रोको आप, और इस पे भी तो जो पैसा, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट। 3,70,000 से ऊपर, लाइक अराउंड 4 4 lakhs जो खर्च हुए हैं इसके ऊपर, दैट्स ऑल्सो कंप्लीट वेस्ट, क्योंकि वो तो आप उसका तो बेच तो नहीं सकते, फ्यूचर में जो होगा वो अलग बात है। बट पर दिस कहीं तो संभाला होगा ना, some security area, it has to be kept, it's a money value if the scheme comes back, हाँ बट so it सर, has वो to be स्कीम kept or destroyed. नहीं सर, बट क्वेश्चन इज ऑल्सो दैट कि इसके अंदर जो छुपा हुआ नंबर है उसका क्या करेंगे, उसको तो आप हटा नहीं वो तो सकते। आप ही ने तो निकाला था वो, तो कौन सर, भूल सकता है वो ये वो सारे स्कीम का, कि आपने जो शुरू शुरू में ही 2 इलेक्ट्रिक बॉन्ड तो 1000 के आप खरीदे। 8,300 जो बॉन्ड्स छपे उसमें तो हिडन नंबर होंगे, तो वो तो आप बेच फिर भी नहीं सकते हो ना, क्योंकि वो तो फिर उन एट नहीं, स्कीम उनमें के भी साथ होंगे, और जो पहले बचे हुए हैं उनमें भी हैं। उनमें भी होंगे, तो एग्जैक्टली पर exactly, आपने तो इतना अच्छा काम किया था, एक
हमें शुरू शुरू में, आई थिंक इट वाज अप्रैल 2018 की बात है, जब आपने हाँ दो हाँ, बंदे और अप्रैल डाउट हुआ, फिर उसका 2018। फोरेंसिक कराया, जी जी। तब आई मीन मेरी फाइलों में जो निकल के आया, अब उनको जस्टिफिकेशन करना था। शुरू से ये कह रहे थे किसी को ना तो उस पर कोई रजिस्ट्रेशन। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर ने लिखा कि हाँ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्विंट ने पब्लिश किया है, तो जी। आप क्या कह सकते हो? तो मेरे पास वो फाइल है जहाँ डिस्कशन हुआ, ये हुआ। दैट इज हाउ ड्राफ्टेड दैट प्रेस रिलीज, कि ये किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, तो दैट ऑल्सो वाज उन्होंने नॉट। जब प्रेस रिलीज भी जारी किया उसमें ये सिक्योरिटी फीचर करके ही कहा उन्होंने, तब भी उन्होंने डिनाई कभी नहीं किया कि ये एग्जिस्ट करता है, और उन्होंने यही कहा कि ये सिक्योरिटी फीचर है। तो आज की हाँ, डेट तो में तो वो खैर वो प्रेस अब रिलीज में सिक्योरिटी। बताया ना। हाँ, और प्रेस। क्योंकि बैंक पहले से ही कह रहा था, फॉर ऑडिट पर्पस वी हैव टू हैव समथिंग। कल को ऑडिट होगा कि आपने 1,000 छुपाए और 10,000 छुपाए हैं, तो जी। उसका रिकॉर्ड कैसे देंगे हम ऑडिटर्स को? कुछ और तो और चाहिए हमें। और इससे तो और ये आपके आरटीआई से तो ये चीज क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकार काफी उम्मीद में थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आगे चलता रहेगा, और इसीलिए शायद उन्होंने जनवरी में, 12 जनवरी को फ्रेश ऑर्डर, वो भी एक दो बॉन्ड्स नहीं, मतलब 10,000 बॉन्ड्स, सिर्फ 1 करोड़ का, वो उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो दिस ऑल्सो शोज द रश। क्या बात की रश थी, हालांकि सुप्रीम हरी कोर्ट क्या, मैं वही तो कह रहा हूँ, जल्दी। आई यूज वर्ड हिंदी, व्हाट वाज हरी, बट का जल्दी क्या थी? जल्दी क्या थी। वेट फॉर द जज। और उसके बाद भी, जजमेंट के बाद, आई थिंक दे वर टेकन बाय शॉक। आई दिस इज माय व्यू, दैट्स व्हाई दे टुक another few days to put stay on further printing. सर वो तो तो यही। लैंडमार्क जजमेंट था वो, मतलब लैंडमार्क जजमेंट, काफी लोगों ने शायद उम्मीद नहीं किया था कि ये स्ट्रक डाउन हो जाएगा। काफी लोगों पर ने आपने नहीं। नो, पर आपने नोट किया उसमें सिर्फ दो ही लेटर लगे हुए थे, किसमें सर? जो मेरी फाइल। पहला वो 26 मई 2017 का इलेक्शन कमीशन का whole judgment हाँ has two हाँ। letters only, यस। and the second was the RBI wala letter. एग्जैक्टली, You तो know, सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। those letters which were in this, I was very happy because I was watching the judgment. That time I was in USA online. I started getting from inside when judgment was coming, going good, and suddenly I got like one of the senior lawyer. He told me, "Congratulations on your documents." I was तो thrilled about आपके that. आरटीआई के जरिए आपके आरटीआई के थ्रू जो डॉक्यूमेंट्स बाहर आए पब्लिक डोमेन में, उसी के बेसिस पे तो पिटिशन फाइल हुई, उसी के बेसिस पे सप्लीमेंट्री पिटिशंस, एड ऑन्स हुए, और जजमेंट तो ऑब्वियसली जब ये सारे आरटीआई के डॉक्यूमेंट ईसी का, स्पेशली इलेक्शन कमीशन ने ऑब्जेक्शन किया था, आरबीआई ने ऑब्जेक्शन किया था, दैट बिकेम द बेसिस। तो ये जजमेंट के पीछे तो ऑफ कोर्स सर आरटीआई का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट मैं कहूंगी, जो कि आरटीआई के थ्रू आया, एंड इट एक्चुअली एक्सपोज्ड हाउ द थिंग्स वर वर्किंग इन द गवर्नमेंट मशीनरी। और ये अगेन, मैं वंस अगेन यू हैव एक्सपोज देम कि भाई वो तो पूरी उम्मीद लगा के बैठी थी सरकार की जजमेंट उनके फेवर में आएगा या बॉन्ड के फेवर में, एंड दे पूनम ऑर्डर। में एक और था। बिगेस्ट स्कैंडल was after the judgment, when Supreme Court had given the order by हम्म। so and so date, the whole data has to be given to the, वो कहते हैं हमें 3-4 महीने चाहिए। मतलब उन्होंने वो पीरियड मांगा था कि नेक्स्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाए तब तक। हाँ, इलेक्शंस दैट वाज खत्म हो जाए। द, व्हेन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया कि नहीं, 12 घंटे या 24 घंटे में करिए, उन्होंने इस बार जो ऑर्डर दिए जाए कहते हैं डायरेक्टली चेयरमैन को गए थे कि विल ट्रीट यू एज ए कंटेम्प्ट। एसबीआई और की। एडीआर ने वो फाइल किया था। पर जब वो भी नहीं आया, 2 दिन बाद एक और हियरिंग करनी पड़ी। जो आपका था ना अल्फा न्यूमरिक नंबर, जी वो जी। नहीं दिए थे पहली बार में। बट अगर आप देखिए अल्फा न्यूमरिक नंबर का इंपॉर्टेंस क्या था, एक तो ऑडिट वर्डिट तो छोड़िए, अगर एक बैंक ब्रांच ने बेचा और किसी और ब्रांच में जाके एनकैश हुआ, अनलेस सिस्टम में वो नंबर था, दूसरा वाला कैसे सोचेगा कि फौज नहीं है? तो ये कहना कि एग्जैक्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जब वो इसको एनकैश करेगा, वो मैच करेगा सिस्टम में कि ये सेम है बॉन्ड। तो ये चीज बार बार मैंने अपनी कई बातों में भी कही, एक कई स्टोरियों में भी लिखा। और जब जजमेंट रिजर्व हुई तो उस वक्त मैंने एक दो स्टोरी और भी की कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन कहा, सीधा स्टेट बैंक को कहना चाहिए था, क्योंकि सारा डेटा तो उनके पास है। हम्म। शुरू से ही अगर स्टेट बैंक को कहा जाता है, अब जजमेंट में कहा गया उनसे, पर उससे पहले ही जब रिजर्व जजमेंट हुई थी,
it should have been ordered to State Bank of India because they had the complete records. सर इससे एक And और the सवाल, other thing which came out, they had spent 1.5 crore before starting the scheme on a system which you can immediately find out what is what. In fact, some media has done this story because I went quickly to my files and said there was a system, and they said we'll start it thereafter sale procedure after system is there. वो है. सर एक चीज बताइए, एक सवाल जो एक मेरे ख्याल से कॉमन जनता के दिमाग में भी है कि ब्यूरोक्रेट्स क्या वो अखबार नहीं पढ़ते या टीवी नहीं देखते? मैं हैरान हूँ, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के जो ब्यूरोक्रेट्स जो ये प्रिंटिंग कर रहे थे, उनको क्या पता नहीं चला कि ये स्क्रैप हो गया है और फिर भी वो डिलीवर कर रहे हैं 23 फरवरी को नहीं तो बॉक्सेस? देखिए ऐसा है, मैं कहूंगा अगर सीधे चार्ज यू फॉर, अगर किसी से let's say it's a commercial thing, they are charging. In this case commercial, I'm using it, security press. Now उनके छप चुके हैं, they need money for that. I mean उनको पता भी चलेगा तो भी प्रिंट तो हो चुके थे ना. अगर फाइल में देखिए उसमें था 23 तारीख को डिलीवर भी हो गए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. दैट मीन्स उससे पहले भेजे गए होंगे. तो उनका जजमेंट से कोई नहीं था. अगर आप देखिए मैंने एक चीज और सीखी इसमें कि जो ऑर्डर था इंडियन जो बोलते 10,000 करोड़ 10,000 बॉन्ड छपने थे 1 करोड़ की. नेक्स्ट स्टेप ये था कि उसको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए थी कि कैंसिल करने के लिए कि जो बाकी 1,000 कुछ है, वो द होल कॉरस्पॉन्डेंस वेंट ऑन टिल फाइनली 10 दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी और उनको बताया गया कि नहीं छापने. बट आप ब्यूरोक्रेसी की बात करें, उनका तो फाइनेंशियल मैटर है ना कि एक प्रॉपर अप्रूवल चाहिए कि बाकी और नहीं छापने. मतलब दिसंबर 2024 तक कॉन्वर्सेशन चल रहा है टू एंड फ्रो, फरवरी से मैं शुरू वही कर तो कर। कह रहा हूँ. इसको मैं मानता हूँ जब फरवरी में रोका गया 27-28 फरवरी को, पहले तो गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक का कहा बाई टाइम लेटर वेंट, वो जो था वो इसको मैं यूज करता हूँ बट स्टे किया गया था फर्दर प्रिंटिंग. हाँ, लेकिन आई तो कैंसिलेशन का कॉरस्पॉन्डेंस कैंसिल के चला। लिए डायलॉग चलते चलते तो आईएसपी बार बार इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पूछ रहा था भैया प्रोसीजर के हिसाब से मुझे अगर ये इंटेंट आया हुआ है लीगली टू कैंसिल इट, आई नीड गवर्नमेंट अप्रूवल. So that approval was given on 10th December and must have been माय followed गुडनेस, into that. 10 महीने, So obviously, 10 months। that's a very important aspect. वो है स्क्रीनशॉट में भेज है आपके पास, मैंने भेज दिए हैं. जी जी जी। तो वो देखने वो दो हैं. एक में तो वो पूछ रहा है प्रिंटिंग प्रेस की इसका अप्रूवल चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ कैंसिल, और नेक्स्ट डे ईमेल है कि गवर्नमेंट इज हियर बाय अप्रूविंग दिस. आप समझिए कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि पॉलिटिकल फंडिंग से रिलेटेड है, इससे सोशल वेलफेयर का कुछ लेना देना नहीं। एम आई राइट? सोशल आप बिल्कुल वेलफेयर सही. या सोसाइटी के गुड के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर से कुछ लेना देना नहीं है, और उस पर इतना टाइम, इतना पैसा खर्च हुआ, और उसमें भी जनता का पैसा खर्च हुआ, और गवर्नमेंट सर्विस में जो लोग हैं उनका टाइम खर्च हुआ। अगर आप टाइम और उसकी वैल्यू जोड़े तो आप समझिए जजमेंट के बाद भी कितना एनर्जी इस पे स्पेंड किया गया, एंड वो सारा पूरी पैसा टीम बना जनता। दी गई थी, टीम सारी काम कर रही थी. वो फाइलों में अगर देखा जाए, विल नॉट गो बैक टू द ओल्ड स्टोरी. इनिशियली हब पोस्ट में हुआ था, देन रिपोर्टर जर्नलिस्ट, उसमें वो सेम एग्जैक्टली चीज को तो ये रिपीट किया पूरा गया. प्रोसेस अगर 2018 से लेकर हम देखें 24 तक, तो कितनी बड़ी टीम, कितना सब कुछ इन्वॉल्व, सरकारी महकमा, ब्यूरोक्रेसी, एसबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्रिंटिंग प्रेस, आप ये सारा उनकी सैलरी भी आप जोड़े तो आप बॉन्ड्स का खर्चा तो एक तरफ है, वो तो आप समझ एक चीज, लीजिए। जनता को ये भी बता दूं कि बॉन्ड्स का प्राइस अराउंड 30 रुपीज पड़ता है जीएसटी इंक्लूड करके पर बॉन्ड। एम आई राइट सर? इसका प्राइस है 25 रुपए एंड ट्वाइस जीएसटी लगती है हाँ, इसके तो ऊपर. करीब तो उस, ढाई सौ 30 और उसके अलावा तो अगर लोगों की सैलरी जोड़े तो पता नहीं कितना प्राइस बढ़ जाए उसका। नहीं. बट लाफेबल इन द होल स्कीम वाज दैट इनिशियली वी केम आउट कि they woke up that they have not asked the, see, the finance ministry, the late Arun Jaitley ji, when the scheme was to be announced in the budget on 1st February 2017. Suddenly somebody woke up कि हमने आरबीआई का तो सलाह नहीं ली because this is a financial document. और second thing, this scheme was to be made under the finance rule, क्या बोलते हैं उसको आप, which is nothing to do with, that means you want to Rajya Sabha and finance bill, which has nothing to do with the finance bill, this scheme.
तो उसके बाद overnight they worked RBI to reply, and this is not a correct thing. And you know that फाइल में लिखा हुआ है कि आरबीआई को समझ नहीं आता है, दे कांट अंडरस्टैंड क्या चीज है, दे हैव नॉट अंडरस्टूड. एंड आई एम नॉट गोइंग फर्दर डायलॉग, वो लिखे जा चुके हैं कई बार, बट दिस वाज, एंड टू मी लॉट ऑफ एफर्ट्स वाज मेड बाय द आरबीआई, पर उनको जवाब नहीं दिया जाता. जब इवन आरबीआई गवर्नर रोट 2 letters September 2017 and 3 letters exchange, पहले तो उनका जवाब नहीं दिया जाता. ही रोट टू फाइनेंस मिनिस्टर, एक सेक्रेटरी थे वहां पे, वो जवाब दे देते थे. उन्होंने लिखा कि अच्छा करना ही है, आई मीन लास्ट स्टेज, इट शुड बी डिजिटल एंड इट्स आवर जॉब टू डू, विल मैनेज डिजिटल. तो लाफिंगली द रिप्लाई सेंट बाय द सेक्रेटरी से, अगर ये हो गया तो हमारा सारा पर्पज ही खत्म हो जाएगा. तो क्या पर्पज था कि बचाया जाए, किसको बचाया जाए, वो है मेरे पास लेटर. इसी का कारण मुझे आज लगता है कि आरबीआई गवर्नर जो थे उन दिनों श्री उर्जित पटेल जी, उनके रेजिग्नेशन का ये लास्ट प्रेशर था, क्योंकि वो शुरू हो गया होगा पहले ही, बहुत सारी चीजें हो रही थी उनके टाइम, एंड ही रिजाइन. तो ये था सारा काम. बॉन्ड्स का पुराने कहानी को अगर पुराने चीजें निकालेंगे तो इतना बहुत सारी इंटरेस्टिंग बन चीजें, जाता है. बट जो फ्यूचर जो चीज हमारे फोकस हमेशा से रहा होना भी चाहिए कि इस पे कोई जांच नहीं बैठी. और एसआईटी टीम का डिमांड तो किया गया था, बट उसे डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कह के कि रिस्पेक्टिव कोर्ट में जाइए इसके जजमेंट, इस पे इन्वेस्टिगेशन के लिए. बट ये एक हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार करके स्ट्रक डाउन हो गया, बट जांच जो कि एलेज्ड क्विट प्रोको है, क्विट प्रोको का है, वो होना चाहिए. या एक चीज थी ना जजमेंट में, देखिए क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये क्विड प्रो को है. अब जब ये निकल के आया जिस दिन, मैं कहा आप जैसे जर्नलिस्ट ने तो विद इन 48 आवर्स सारा बता दिया किसने किसको दिया. एंड फर्स्ट थिंग वाज वन ऑफ द, आई थिंक फार्मास्यूटिकल ऑफ गुजरात, those medicines were considered below power and was already told. He gave some money to government, and that means even they compromise the health of the people at what cost? Exactly. I mean, the worst. और जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के, मेगा इंजीनियरिंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली कंपनी है जो कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भर भर के मिल रहा है उन्हें, और उनकी क्वालिटी का जो काम, जो क्वालिटी इज वेरी पुअर और डिले इन वर्क. तो ये सारी चीजें आई सामने आई कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड, लार्सन ट्यूब को निगलेक्ट कर दिया मेगा इंजीनियरिंग. हाँ एग्जैक्टली. वो केस फिर आया, अभी आपने देखा होगा लास्ट मंथ और समथिंग, वो केस केम बैक एंड दैट टेंडर वाज कैंसिल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. बिकॉज अगर लार्सन ट्यूब, आई थिंक वन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज दैट दिल्ली के जो बन रहे थे नए मकान, बहुत सारे टनल्स भी बनाए उन्होंने, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज द बेस्ट, बट they were neglected, so they have filed a case in Supreme Court. so Which came this up is a matter of and that tender had to be cancelled. yeah. And lottery wale, just the highest money gaming, was lottery guy gaming who वाले, had a case. exactly. तो बहुत कुछ ये था जिनके ऊपर केस चल रहे थे, मैं तो यही कहूंगी सर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कहानी अभी 50% हम इंटरमिशन में बैठे हुए, अभी इंटरवेल ही है, तो पता नहीं क्या क्या निकल के. अब जैसे मेरी आती है, 2 तो स्टेट बैंक गई हैं, एक मैंने आईएसपी पे गई, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, उन्हीं का पूरा चार्ट मैंने उनको दे दिया. मैं उनसे यही पूछा कि बताइए किस दिन आपने बिल गवर्नमेंट को भेजा था और किस दिन आपने पेमेंट आपको मिली. वी नो इट्स नॉट देयर. इन केस this amount has been absorbed by the ISP, please tell me under which head. It has to have some reason, because so far head has been given by the Finance Ministry Department, Economic. So these are the things which are very important. Yeah. And it will come forward. So let me see what answers they give it. So in fact, I personally have been pushing up the Indian security press. भाई आपने 2-4 लाख के करीब के बिल के बैठे, उसका ऑडिट नहीं होता क्या आपका? तो मैं तो ये कहूंगी आप अपना आरटीआई लगाते रहिए, बहुत सारी चीजें जो उससे निकलेंगी. एंड आई फील यू whatever work you have done is absolutely amazing. और आपका ये जो आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन लेने का प्रोसेस है सर, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आगे भी करते रहिए. एंड इट्स द बिगेस्ट सर्विस जो एक इंसान सोसाइटी के लिए कर सकता है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. Thank you so much. I salute you.
but my RTIs are for public interest. I have not Absolutely. filed a single RTI which concern me or my family or near friends. This gives a large public. In Yes. fact, I would say journalists, my message to journalists is even for Election Commission of India, played totally opaque. The information which was given to me few years ago, same Now there. information when this is they refused to give. We should be doing instead of waiting for CIC to do with those documents, we should be doing stories. Absolutely. I mean, we should ridicule them. क्या हो गया आपने दे रहे हो आप क्या प्रॉब्लम आ गई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे आपको याद है एक एफिडेविट दी थी उन्होंने कॉपी जिसमें लिखा था 105 पार्टी आप लोगों ने एक्सपोज किया था मैंने कहा हो ही नहीं बिल्कुल सकती बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैंने मांगे बिल्कुल हैं सही। और यही नहीं खाली मैं प्रूफ दिए पुराने वाले डॉक्यूमेंट जो दिए हैं उसका कॉपी लगा तो इन जो इलेक्शन कमीशन की 3-4 आरटीआई हैं मेरे ख्याल में उस पर भी चर्चा होनी बिल्कुल सर। So on क्योंकि this note, on this public interest note, I would like to end it here. And thank you so much, sir, for joining ExplainX, and have a very good day. Thank you. थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर